So now we are starting. Yeah. So hi friends, we just come to know that after the COVID, the market has corrected so many times. Like when the Ukraine war happened, when the budget happened, election happened. But every time market went come down 5 to 10%, but it recover within 15 days or 1 month. And people, lot of people have not seen the this type of corrections after the COVID. And a lot many people have started to trade their own stock. तो मेरा कहने का मतलब था कि जिन जिनके पास में म्यूचुअल फंड्स हैं या सपोज दोज हु आर इन्वेस्टेड इन एडवाइजरी थ्रू प्रोडक्ट्स, कोई भी पीएमएस हो या खुद का कोई भी एडवाइजरी से जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन्होंने खुद के पोर्टफोलियो बनाए, लाइक दे बाय सीइंग सम न्यूज, टेकिंग सम टिप्स, तो उनका पोर्टफोलियो में बहुत सारा डाउन हुआ है, because we have seen that some stocks may be down around 20 to 30%. And secondly, lot of assets class is behaving in a very different manner. Like China market has, or even Hong Kong, which is based on the China stocks, they have up around 20% last 2 months. And China or Hong Kong tech index, which is up around 25%. At the same time, Indian market has down around 15%. Nasdaq S&P is up by around 50 to 20%. So why there is so much divergence? And you can see the precious metal like gold. Gold has also up by around 40%. Silver is also up by 35%. So to come to know that, we have decided to keep this meeting to understand why different asset class is behaving. So we have our today's speaker, Mr. Prasad Sapare. He is a B from BJTI, and he has also done the PGP Masters in Advisory from NISM, having experience of 12 years in IT department, IT companies, and experience of 6 years as an investments advisor. And he is having investing in stocks in 21 years and NISM certifications for the advisory business in the stock specimen. So he not only see the technical, but as well as the fundamental. So those who are looking only the technical purpose, they stuck up in some stock. And those who are only in fundamental, they also stuck up in some portfolio. Nowadays, the momentum and fundamental plus technical. So I'm talking about only the stocks, not today about the mutual fund. We are talking about only the stocks portfolio. If you have any questions or query about the mutual fund, we will take later on. Today meeting is we have done only for the equity stocks investing. So over to Mr. Prasad. Please take care and meeting proceed to by Mr. Prasad. Hello, can you hear me? Hello. Yes, Yes, we very can. well. Okay. Yeah. Thank you all for attending this meeting. I will share my slides. Let's start with stock market overview and the road ahead. We will cover the topics listed here. We'll cover economic outlook, general economic scenario in India. Then we will look at Nifty's performance over last year. We will also see how global volatility impacts Indian stock market. The current asset class that is making news is gold mainly and silver. So we will see impact on these asset classes also. And we will see budget's impact on various sectors. Let's come to economic outlook. We will just go through the important economic indicators that we track to judge where the economy is headed to.
We will see those indicators one by one. The most important indicator is GDP, that's gross domestic product of India. If you see GDP, it's steady around 7%. This is from FY15 to FY18. Then it dipped a bit. This was mainly because of there was some disruption in due to GST implementation. So after that, COVID struck and the entire country was in lockdown. So that everyone knows. After that, it bounced back in FY22 and it is rising since then, and it topped around 7.8% in FY24. Now, these two final numbers, 6.7 and 5.4, are the first 2 quarters of this financial year. इसमें GDP थोड़ा स्लो डाउन हुआ बिकॉज देयर वर जनरल इलेक्शंस, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा ध्यान इलेक्शन पे था और देर आर सर्टन रूल्स के नए प्रोजेक्ट अलॉकेट नहीं कर सकते, सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हुआ था. सो उसका इम्पैक्ट वी कुड सी इन Q1 and Q2. Hopefully from Q3 onwards economy will pick up. Inflation as measured by consumer price index, inflation आप देखोगे तो it's in the range for most of the time, that is 4 to 6%. 4% is RBI's comfort level. जब भी inflation 4% पे होता है या कम होता है तो RBI can give some monetary stimulus. ये वेरी हुआ है थोड़ा, 3.6 से टॉप हुआ 6.2 पे. इट्स मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन. उसका सीजनल इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होता है, इसलिए इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है. अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर है 4.3, तो इट्स शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड. और अभी फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, ये 2 महीने इन्फ्लेशन के लिए, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन के लिए अच्छे रहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन कम होता है. सो वी विल सी better numbers for these 2 months at least. Same in line with GDP, if you see India's IIP growth rate for this year, मई, जून, जुलाई तक अच्छा था. बाद में जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मॉनसून रिलेटेड सप्लाई चेन इशू भी था, अगस्त में वो 0 हुआ. बाद में वापस IIP growth is picking up. अभी ये What is IIP growth? IIP means what? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है ये. इंडस्ट्री Okay. कितना प्रोड्यूस करता है वो IIP में दिखाते हैं. Okay, thank you. This one important macro measure is GST collection. आप देखेंगे तो मंथली GST collection is very steady around 1.8 lakh crores. So GST is growing steadily. So that's a good news. USD INR rate, after consolidating for most of the many months, US INR broke out of the 83 range and it started depreciating. अभी INR है वो 84 से 87 हो गया है 4-5 महीने में. FIs are also taking out money in dollar terms. That is one of the reasons. और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है. And also India is importing gold. So that is putting pressure on rupees. इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स इस सिचुएशन में काफ़ी हेल्दी है. ये लास्ट ईयर के फॉरेक्स रिजर्व्स है अराउंड $646 बिलियन से बढ़ के $705 हो गए. अभी करंट रीडिंग इज $631. अभी ये सितंबर से जो फॉरेक्स रिजर्व रिड्यूस हुए हैं
That's mainly because FIs are taking money out of India. एक अच्छी बात हमारे लिए है कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल टेंशंस लाइक वॉर, दो जगह पे वॉर हो रहा है, गल्फ में वॉर हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, उसमें उस टेंशन में भी क्रूड ऑयल स्टेडी रहा है अराउंड $80। इट्स अप्रैल में $81.93 था, अभी $72.5 के आसपास है। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। एंड वन मोर वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया इज इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है वो स्टेडीली कम हो रहा है। दैट मीन्स गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट कम हो रहा है, सो गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर मनी ऑन अदर प्रोडक्टिव थिंग्स। ये 7.19 था अप्रैल में, वो स्टेडीली कम होके अभी 6.69 है 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर दिस is this: FII inflows into government bonds are at all-time high. लास्ट ईयर में ही इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड किया था। तो FIIs are investing in Indian government bonds. FIIs were taking money out of equity market, लेकिन they were putting money in Indian bond market. So that has kept yields very much in control. तो अभी देखते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है इस साल में। देखोगे तो मार्च में ये 22,000 के आसपास था, फिर तो स्टेडी राइज हुआ और सितंबर में टॉप आउट हुआ और फिर स्टेडी करेक्शन हो रहा है। ये 1.5 years मार्च 23 में जो रैली हुआ, ये 1.5 साल के रैली का करेक्शन अभी चालू है। सो अभी तक तो ये नॉर्मल करेक्शन है। अभी फिबोनाची लेवल आप देखोगे तो 38% रिट्रेसमेंट के आसपास है। दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सपोर्ट। 22,600 पे पास पे बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का। आप ये चार्ट देखोगे तो निफ्टी अभी ये वेज पैटर्न अभी हो रहा है निफ्टी में। सो मोस्टली ये लाइन होल्ड करना चाहिए। दिस लाइन इज अ वेरी गुड सपोर्ट, और ये लाइन ब्रेक हुआ तो ये भी अच्छा सपोर्ट है। जो 4-5% के दायरे में है, रेंज में है। अभी हम निफ्टी का पी रेशो देखते हैं। निफ्टी का पी रेशो यूजुअली कोविड के पहले था, जो हमारा नॉमिनल ग्रोथ था वो ज़्यादा था। अभी नॉमिनल ग्रोथ कम हुआ है। नॉमिनल ग्रोथ 10 to 12% हुआ है। पहले ये नॉमिनल ग्रोथ ज़्यादा रहता था, 15% के आसपास रहता था। तो निफ्टी का पी रेशो भी प्री कोविड देखोगे तो 20 to 25 में है। मोस्टली ऊपर ही है, 20 के ऊपर है। एंड इफ यू चेक द करंट पी रेशो ग्राफ हियर, ये रेंज, सो लोअर एंड इज अराउंड 20 एंड हायर रेंज इज अराउंड 25। पी रेशो आप सबको मालूम है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। निफ्टी का जो ईपीएस है, प्राइस अर्निंग्स और प्राइस का डिवीजन होता है। तो अभी जो फिलहाल करंट पी रेशो है, दैट इज वेरी क्लोज टू 20.4 के आसपास है। एंड 20 इज अ गुड सपोर्ट। सो अभी 2% नीचे निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 4-5% के नीचे जाना मुश्किल है निफ्टी का। अगर बहुत ही कुछ तो
अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हुए तो ही वो लेवल ब्रेक करेगा, लेकिन वो हम लोगों को अभी क्या सर्कमस्टेंसेस है अभी मालूम नहीं है, तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन ये लेवल होल्ड करना चाहिए निफ्टी। इसे मैंने कहा नॉमिनल ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। अभी दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए निफ्टी 50 कंपनीज के, उसमें टॉप लाइन ग्रोथ वाज ओनली अराउंड 4.5%। कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 4.5% से बढ़ा, लेकिन कंपनीज बिकेम मोर एफिशिएंट। ग्रॉस प्रॉफिट है वो 10% से बढ़ा और नेट प्रॉफिट है वो 15% से बढ़ा। सो दैट इज अ गुड थिंग दैट दे कुड इम्प्रूव देयर मार्जिन्स। तो टॉप लाइन 4.5% था, तो भी बॉटम लाइन हैज ग्रोन बाय अराउंड 15%। So it is showing strong growth, good growth in the global environment, you can say. ये चार्ट है निफ्टी और निफ्टी का ईपीएस है। ये जो रेड लाइन है वो निफ्टी है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी का ईपीएस है। अभी यहाँ से आप देखोगे तो निफ्टी has always following earning. It is said that markets are slave to earnings. जो अर्निंग ऊपर जाता है तो मार्केट को ऊपर जाना ही है। यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है तो रेड लाइन ने भी कैचअप किया, निफ्टी ने कैचअप किया, फिर ये 2008 का क्रैश आ गया। इसमें इंडिया पे इम्पैक्ट कम पड़ा, थोड़ा सा ईपीएस डाउन हुआ, फिर भी बाद में पिकअप हुआ और निफ्टी ने वापस अर्निंग को कैच किया। फिर वापस थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक करेक्शन आ गया, यूरोपियन इशू, ग्रीक डिफॉल्ट वगैरह वो सब, यूरो में प्रॉब्लम चल रहे थे 2011-12 के आसपास, तो तभी निफ्टी करेक्ट हो गया, लेकिन ईपीएस बढ़ रहा था। ईपीएस स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी निफ्टी ने कैचअप किया। उसके बाद 2016 के बाद थोड़ा डिक्लाइन आया ईपीएस में, डीमोनेटाइजेशन हुआ और निफ्टी भी थोड़ा करेक्ट हुआ, लेकिन ईपीएस स्टेडी रहा। फिर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और एक कोविड में ईपीएस थोड़ा डाउन हो गया। यहाँ पे ईपीएस स्टेडी है, लेकिन मार्केट दैट टाइम वाज स्टेडी। वो कोविड में एक निफ्टी ने डिप दिया और ईपीएस भी कम हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन निफ्टी पहले बॉटम आउट हुआ, मार्च में निफ्टी बॉटम आउट हुआ और निफ्टी ऊपर जाने लगा। और यहाँ पे ईपीएस ने भी कैचअप किया, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप होती रही ईपीएस बढ़ने लगा। निफ्टी का टॉप सितंबर में हो गया 26,200 के आसपास, और यहाँ पे ईपीएस स्टेडी ही है, और वहाँ से निफ्टी करेक्ट हुआ, फिर भी ईपीएस थोड़ा बढ़ रहा है। अभी करंट ईपीएस इज अराउंड 1100, और जो FY26 जो नेक्स्ट ईयर मार्च में ईयर एंड होगा, उसका ईपीएस एस्टिमेट है अभी 1200 का। सो 1200 इफ यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशो ऑफ 20, तो निफ्टी का फेयर वैल्यू आता है 24,000 के आसपास। और यहाँ से अगर ईपीएस स्टेडीली अप होता है तो निफ्टी इसको ऊपर कैचअप करना ही है। So let's see the global volatility and its impact of Indian market. First, we will take the impact of wars. जैसे कि everyone knows, war impacts energy sector very much. Oil prices बढ़ते हैं, और इसीलिए oil prices, Indian markets are very sensitive to oil prices because we import most of the oil requirement. फॉर्चुनेटली जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और गल्फ में वॉर हुआ, फिर भी हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, एंड दो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का
प्राइस बढ़ गया, इंडिया में ऑयल प्राइसेस स्टेडी था। और जब वॉर बढ़ता है तो मेटल्स का भी डिमांड बढ़ता है, एनर्जी का डिमांड बढ़ता है, एंड ऑल्सो पीपल बाय सेफ हेवन एसेट्स लाइक गोल्ड। और जैसे मार्केट स्टेडी स्टेट में रहता है, इम्पैक्ट ऑफ नो वॉर्स, मतलब जब भी इम्पैक्ट कोई वॉर नहीं होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फेड इज नॉट प्रिंटिंग लॉट ऑफ मनी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, तो ऑल बिजनेसेस डू वेल। और जैसे कि 2003-2008 में पीरियड था, तो बिजनेसेस डू वेल, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देता है उस सिनारियो में। लेट्स कम एट टू द लेटेस्ट इशू इन ग्लोबल मार्केट, दैट इज ट्रम्प टैरिफ्स। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, he has started announcing tariffs on various nations. He wants to make US as a manufacturing hub again. He wants to bring back outsourced job to US. और जो यूएस से जो एक्सपोर्ट अलग कंट्रीज में रहते हैं उस पर टैरिफ होते हैं। सो ट्रम्प का कहना है कि हम आप लोग हमारे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाए थे, तो हम भी आपके इंपोर्ट पे टैरिफ लगाएंगे। तो इसलिए ट्रम्प ने कुछ टैरिफ्स अनाउंस किए हैं फॉर सर्टन कंट्रीज लाइक चाइना, मेक्सिको, कनाडा। और वैसे भी स्टील प्रोड्यूसर्स और एल्यूमिनियम पे भी टैरिफ हाइक किए हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, अदर नेशंस का इम्पैक्ट होगा कि उनका एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा, और यूएस में इंपोर्ट प्राइस बढ़ने के कारण यूएस का इंटरनल प्राइस बढ़ेगा, और इट विल बी इन्फ्लेशनरी इन यूएसए। और बाकी जो नेशंस जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि जापान, कोरिया, चाइना, उनके स्टील और एल्यूमिनियम इंडिया में और अदर कंट्रीज में डाइवर्ट करेंगे। तो इंडिया में स्टील और एल्यूमिनियम का प्राइसेस कम होगा, तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और जो भी स्टील एल्यूमिनियम कंज्यूम करता है उन सेक्टर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इंडियन जो प्रोड्यूसर्स है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स, स्टील प्रोड्यूसर्स, उनके लिए इट्स अ नेगेटिव न्यूज़। और सपोज इंडिया ने अभी ट्रम्प इज टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया एंड ब्रिक्स नेशन इन जनरल और ऑल नेशंस। अभी इंडिया इंपोर्ट करता है जो भी यूएस से, इट पुट्स टैरिफ ऑन दोज। अभी सब लेट्स से आईफोन बनता चाइना में है, लेकिन इट्स अमेरिकन कंपनी, सो उस पर टैरिफ लगाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आज टैरिफ 50% है और कल वो टैरिफ 20% होता है, इंपोर्ट टैरिफ, तो आईफोन की कीमत कम होती है। तो आईफोन की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो इंडिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी, एंड सो वी विल इंपोर्ट मोर आईफोन्स इनटू इंडिया। लेकिन इंडिया ऐसा कंसिस्टेंटली इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया का ट्रेड बैलेंस उससे हैम्पर होगा, और इंडिया हैज लिमिटेड डॉलर अमाउंट, इंडिया कैन नॉट पे इन डॉलर्स। सो जो अपना डॉलर जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो भी कम होगा। सो दैट्स वी हैव टू वे द सिचुएशन। रुपी डेप्रिसिएशन इटसेल्फ एक्ट्स एज अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स। अभी रुपी 10% डिप्रिशिएट हुआ, 5% डिप्रिशिएट हुआ, तो रुपी टर्म्स में उनकी कीमत उतनी बढ़ती है परसेंटेज टर्म्स में। और अभी एक लेटेस्ट चीज है जो जीएसटी इंडिया चार्ज करती है। अभी इंडिया में जो भी कंज्यूम होता है उस पर जीएसटी हम लोग लगाते हैं, लेकिन जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है उस पर जीएसटी नहीं होता। तो ट्रम्प सेज दैट आप इंडिया में जिस प्राइस पे बेचते हो उससे कम प्राइस में यूएस में आता है आपका, जो इसलिए वो जीएसटी जितना है उतना टैरिफ वो इंपोर्ट पे, यूएस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया लगाएगा।
तो उससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जिन जिन पे टैरिफ लग रहा है उनका थोड़ा प्राइसिंग बढ़ेगा, मार्जिन्स कम हो सकता है, सेल्स कम हो सकता है। लेकिन ये कितना देर चलेगा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि यूएस में ये सब इंपोर्ट टैरिफ बढ़ेगा तो यूएस कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होगा और इन्फ्लेशन वहाँ का बढ़ेगा। अभी द मोस्ट talked about asset class currently is gold. Gold is very important. Abhi Indians know the importance of gold. It has been a traditional go-to safe haven for most of the Indian families. Gold का importance कब बढ़ता है? Whenever there is economic uncertainty, people turn to gold. जब भी रिसेशन होता है तो गोल्ड का डिमांड बढ़ती है। जब भी इन्फ्लेशन होता है, मे बी बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन और जनरल मनी प्रिंटिंग, तो गोल्ड का डिमांड बढ़ती है, गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। ऑल्सो फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। इंडियन सेंट्रल बैंक ने भी बाई किए, चाइना ने भी किए, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज वर बाइंग गोल्ड। सो उसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और इट इज हेल्पिंग गोल्ड प्राइसेस। There is one news that US wants to revalue its gold. अभी यूएस में जो ऑफिशियल गोल्ड का प्राइस है वो $44 पॉइंट समथिंग है पर आउंस, लेकिन मार्केट प्राइस अभी गोल्ड का है इट्स अराउंड 29-30 देयर अबाउट्स। सो देयर इज अ ह्यूज गैप। जब भी 1970s में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ तभी से ये प्राइस कांस्टेंट है और वो रिवाइज नहीं हुए है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ट्रम्प वांट्स टू डू अ रिवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड। वो गोल्ड की प्राइस सीधा $44 से 2900 या 3000 पे रिवैल्यू कर सकते हैं एंड दे वांट टू इशू बॉन्ड्स अगेंस्ट दिस गोल्ड, सो गोल्ड बैक्ड बॉन्ड्स। अभी जैसे यूएस फेड करता है, बॉन्ड इशू करता है, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स एज सच। लेकिन जो अभी जो सिनारियो प्ले आउट होगा यूएस रिवैल्यूएशन का, उसमें बॉन्ड्स विल बी इश्यूड अगेंस्ट गोल्ड, ऐसी न्यूज़ है मार्केट में। एंड देयर इज वन मोस्ट important issue that is being discussed in mainstream media in US is about Fort Knox audit. फोर्ट नॉक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे गोल्ड यूएस अपना गोल्ड रखते हैं। ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स ऑफ यूएस के है 88,100 टन्स और उसका 59% अराउंड गोल्ड फोर्ट नॉक्स में है। फोर्ट नॉक्स एक जगह है यूएस में और उसका ऑडिट, उसमें एक्चुअल में कितना गोल्ड है, इट्स एक्सपेक्ट टू बी अराउंड 6,000 टन्स, उतना है 5,500 टन्स, उतना है कि नहीं उसका ऑडिट ही नहीं हुआ है इन लास्ट 70 ईयर्स। जस्ट इमेजिन, आप में से काफ़ी लोग बिजनेसमैन होंगे, हम लोगों को अपना ऑडिट हर साल करना पड़ता है, लेकिन जो इतनी इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है गोल्ड, और वो भी यूएस जैसे कंट्री में, उसका ऑडिट 70 साल में हुआ ही नहीं है। जो ट्रम्प एंड एलन मस्क आर पुशिंग फॉर फोर्ट नॉक्स गोल्ड ऑडिट। तो अभी वहाँ पे कितना गोल्ड है, कम है, ज़्यादा है, वो सब ऑडिट करना है। अभी ये पॉलिटिकल इशू है या सच में देयर इज सम प्रॉब्लम, दैट वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। इसकी वजह से लेकिन क्या हो रहा है, पेपर गोल्ड की डिमांड थोड़ी फिजिकल गोल्ड में शिफ्ट हो रही है। अभी कॉमेक्स है जो कमोडिटी एक्सचेंज है यूएस का, उसमें ऑल टाइम रिकॉर्ड गोल्ड की डिलीवरी हुई जस्ट लास्ट मंथ। कंबाइंड लास्ट 20 ईयर्स में भी इतनी नहीं हुई थी कंबाइंड, उतनी फिजिकल डिलीवरी गोल्ड की हुई है।
और अगर उस ऑडिट में कुछ गलत निकलता है, मतलब जितना गोल्ड है उतना नहीं मिला, सपोज जितना एक्सपेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? सपोज आपने लोन लिया है एंड इट इज बैक्ड बाय सम असेट्स, और आपके क्रेडिटर को पता चला कि वो असेट्स आपके पास है ही नहीं, तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे? आपसे पैसा लेने लाइन अप होंगे, इमिडिएटली आपके यहाँ आएंगे और लोन रिपेमेंट करने को बोलेंगे। तो यूएस का सिचुएशन भी वैसे हो सकता है और डॉलर में उसका प्रेशर हो सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक है, गोल्ड इज एज पर रिकॉर्ड वहाँ पे पूरा है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। फिर डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड gold may not rise much because of this issue. Silver is most of the time silver follows gold price. It has other industrial uses also, like it's used in electric vehicles and electronics circuits. ये गोल्ड का लॉन्ग टर्म चार्ट है। 1999 से एक गोल्ड का बड़ा बुल रन आया, उसमें अराउंड $240 था गोल्ड। वो अराउंड $1900 हुआ 13 साल में। तो 13 साल में इट हैज गॉन अप अराउंड 7-8 टाइम्स। फिर थोड़ा 4-5 साल का कंसोलिडेशन आ गया। और फिर वापस बढ़ने लगा। तो अभी ये 2016 से जो रैली चालू हुआ है उसको 9 साल हो गए हैं, और 1100 से अभी अराउंड 2936 है। दिस इज गोल्ड इन इंडियन रुपीज। सेम 2016 का रैली दिखा रहा है एंड इट हैज फॉलोड अ सिमिलर ट्रेंड। सो गोल्ड ऑन सिल्वर में लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा पॉजिटिव चल रहा है। ये सिल्वर का प्राइस है। सिल्वर में क्या हो रहा है, ये सिल्वर ने ये टॉप बनाया था 2011 में, अराउंड $49-50 का था। वो अभी तक सिल्वर ने क्रॉस नहीं किया है, जबकि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। और यहाँ पे सिल्वर का ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये सिल्वर इंडियन रुपीस में 2019 से ये रैली चालू हुआ, तभी 35,000 के आसपास था 1 किलो चांदी। अभी 92,000 के आसपास है। So long-term charts of gold and silver are looking good. अभी जो फिलहाल बजट हुआ 1 फरवरी को, उसमें गवर्नमेंट ने सर्टन बजट रीअलोकेशन किया। One important thing government did is the tax breaks to people earning less than 12 lakhs rupees. So उस वजह से क्या होगा, जो गवर्नमेंट को उसमें जितना लॉस हुआ उतना बजट उन लोगों ने डिफेंस से कम किया। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, न्यूट्रल टू नेगेटिव इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी ज़्यादा बढ़ाया नहीं। वन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ दैट इज जो भी बजट पहले से अलोकेटेड था वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है। फुल्ली यूटिलाइज हुआ तो भी वो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसका काम चालू है, बैकलॉग पड़ा है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, इस सेक्टर से बजट कम बढ़ाया और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स ब्रेक्स दे दिया। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सेक्टर्स लाइक FMCG, ऑटोज, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म। जब भी अभी आपका हर महीना 10-20% सैलरी बढ़ेगा, तो पीपल व्हाट विल डू, दे विल आइदर कंज्यूम और इन्वेस्ट और गो ऑन अ ट्रिप। लेट्स कम टू द लीडर्स ऑफ द रैली। जो रॉकेट स्टॉक हुए लास्ट 1.5 साल में, जो रैली देखी है ना वही देख रहा है। अभी जब भी न्यू रैली आती है, जब भी लीडर्स न्यू आते हैं, हर रैली के लीडर्स न्यू होते हैं। दोस्तों के साथ जो प्रीवियस रैली थी उसमें
लीडर सेक्टर थे, डिफेंस सेक्टर वाज लीडर, स्टॉक्स लाइक HAL, BEL, Mazgaon Dock थे. रेलवे सेक्टर डिड वेरी वेल, IRFC, RVNL जैसे. फिनटेक कंपनीज, CAM, CDSL और ब्रोकरेज कंपनीज, बिकॉज 2020 तक 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अभी वो 17-18 करोड़ हो गए हैं. तो इन्वेस्टमेंट हैबिट बहुत बढ़ गया है इंडिया में. पावर सेक्टर, ऑब्वियस, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, तो पावर डिमांड बढ़ता ही रहेगा. ऑटो सेक्टर्स, टाटा मोटर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, M&M, TVS Motors वर द लीडिंग companies, and laggards were HUL and Asian Paints. We will see why they were laggards next. Some of the common issues that we found out with the stock portfolio, we will discuss them. एक इशू लोगों का रहता है कि पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म्स निफ्टी. निफ्टी बढ़ रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो कम पड़ रहा है. सर्टन अनदर इशू इज निफ्टी रैलीज, लेकिन कुछ स्टॉक्स रैली नहीं करते, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में एशियन पेंट्स, HUL जैसे स्टॉक्स है, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स थे, लेकिन उन लोगों ने 3-4 साल में ज़्यादा रैली नहीं किया. दे ऑल आर गुड कंपनीज, लेकिन दे वर कंसोलिडेटिंग. और एक इश्यू रहता है कि निफ्टी करेक्ट्स लेकिन पोर्टफोलियो करेक्ट्स मोर. इसमें ज़्यादा के ज़्यादा करेक्शन में हाई मोमेंटम स्टॉक हम लोग जब भी लेते हैं बुल रन में, वो अगर हम लोगों ने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किए तो करेक्शन में भी वो हाई मोमेंटम स्टॉक ज़्यादा गिरते हैं. सो निफ्टी करेक्शन में पोर्टफोलियो ज़्यादा करेक्ट होता है. और इस रैली में जैसे हुआ कि देयर वर हाई पी स्टॉक्स, काफ़ी सारे लोगों ने टॉप या आसपास में बाय किए होंगे, वो उसमें बने रहते हैं, जैसे ट्रेंड, जोमेटो. अभी ट्रेंड का आप देखोगे, ट्रेंड का 40% फॉल हुआ है, 8345 से अभी 5000 के आसपास है. उसका हाईएस्ट पी था 223, प्राइस टू अर्निंग रेशो 223 था, अभी 121 है. अभी 40% गिरने के बाद भी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो उतना कम नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से. सिमिलरली जोमेटो 305 से 205 हो गया, इट्स अ 34% फॉल. उसका भी पी रेशो दिसंबर में 360 था, अभी अभी भी करंट पी 312 है. तो देयर इज स्टिल हाई वैल्यूएशन इन सम कंपनीज. आप देखोगे ये भेल का चार्ट है, भेल का EPS है और भेल का PE रेशो है. अब यहाँ पे देखोगे भेल का EPS नेगेटिव था, तो भेल वाज मेकिंग लॉस. बाद में इसने प्रॉफिट करना चालू किया, लेकिन उसका प्राइस बढ़ रहा था, तो पी रेशो भी बढ़ रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, EPS आप देखोगे, EPS ग्रोथ सस्टेन नहीं हुआ. ऐसे EPS ग्रोथ बढ़ना चाहिए, लेकिन EPS ग्रोथ यहाँ कम होके यहाँ पे उसी लेवल पे मेंटेन हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है. इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे भेल टॉप हुआ और भेल भी करेक्ट हो गया. तो इसका भी भेल का हाईएस्ट पी वाज 400, नहीं, अभी पी 130 है. एंड स्टॉक भी करेक्ट हुआ है 335 से 200 के आसपास, 40% फॉल हुआ है. तो हम लोगों को जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को पी रेशो और EPS देखना ही चाहिए. आप कौन से पी पे कहाँ पे एंटर करते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और कभी भी, ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट. ये डीमार्ट का है. डीमार्ट तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, लेकिन क्या हुआ, IPO से ये इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत हाई था. अभी ये 2000
अक्टूबर 2021 में ये टॉप हुआ अराउंड 5900, और उसके बाद अभी 2-2.5 साल में इट्स 3600, सो 39% करेक्शन हुआ है 2.5 साल में। और इसका पी तभी हाईएस्ट पी था 314, और करंट पी है 88। तो दिस इज कॉल्ड पी कॉन्ट्रैक्शन। जब भी हाई पी के स्टॉक्स गिरते हैं तो उसका यहाँ पे इसका ईपीएस बढ़ रहा है डीमार्ट का, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है क्योंकि पी रेशो वाज वेरी हाई, और 300 पी मल्टीपल पे उतना ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? लेट्स लुक एट द रोड अहेड। तो अभी जब भी निफ्टी बॉटम होगा और नेक्स्ट रैली चालू होगी, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई न्यू लीडर्स इन द अर्ली इन द ट्रेड। जितना अर्ली आप हम हम लोगों को समझेगा उतना अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जितना अर्ली ट्रेंड कैच करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स बनेगा। सो कौन सा सेक्टर लीड करेगा, कौन सा स्टॉक लीड करेगा, उसमें भी हर सेक्टर लीड करेगा, उसमें भी हर स्टॉक बहुत बढ़ेगा ऐसा भी नहीं होता है। देयर आर सम लैगार्ड्स, देयर आर सम लीडर्स। तो उसमें सेक्टर, कौन सा सेक्टर 1 साल के लिए अच्छा करेगा, बाद में कौन सा सेक्टर कंसोलिडेट होगा। जैसे आईटी कंसोलिडेट होता है तभी बैंक्स बढ़ता है। जस्ट जस्ट एन एग्जांपल। सो अगर आप ट्रेडर है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी कौन सा सेक्टर कंसोलिडेट करेगा, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करे, वो सब ड्यूरिंग द रैली देखना पड़ेगा। और आपने एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, आपने अर्ली ट्रेंड कैच भी किया, लेकिन आप पूरा पैसा उसी सेक्टर में डालना बहुत रिस्की होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीच बीच में जब भी सेक्टर रैली आती है, वो बीच में करेक्शन भी 25-30% करेक्शन हो सकता है। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहेगा। Also, identification of stocks behavior, stocks type is very important. Some stocks are good for long-term investment. They are like Sachin Tendulkar, Rahul Dravid of your portfolio. आपको मालूम है ये लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करता ही रहेगा। सो यू नेवर ट्रेड इन देम, यू स्टे विद देम। सम स्टॉक्स होते हैं गुड फॉर ट्रेडिंग, जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि अभी T20 है, वनडे इंटरनेशनल है, तो युवराज सिंह टीम में चाहिए ही चाहिए। T20 है तो सूर्य कुमार यादव चाहिए टीम में, क्योंकि वो फटाफट आपको रन बना के देगा। इससे आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न्स भी इम्प्रूव होता है। लेकिन आपको एंट्री और एग्जिट भी एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको चेक करना पड़ेगा आप कौन से प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं, और कभी एग्जिट करना है। ये ट्रेडिंग के हिसाब से करना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स में क्या होता है, बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज होता है, उस हिसाब, दैट्स वाई दे अंडर परफॉर्म और आउट परफॉर्म। अभी वन ऑफ द रीजंस इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। अभी एशियन पेंट्स और HUL में क्या हुआ, एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर 65-70% था एक टाइम पे। वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि पेंट सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो एशियन पेंट्स आप देखोगे 3500 से अभी 2250 के आसपास है। कंपनी इज वेरी गुड, स्टिल इट इज ग्रोइंग। उसका ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, कभी कभी थोड़ा डिग्रोथ भी हुआ है सेल्स में, बट ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन उसने अंडर परफॉर्म किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर सेम, HUL का कंपटीशन बढ़ा। पीपल आर मूविंग टू हेल्दियर स्टफ। कम लोग चीनी खाना कम कर रहे हैं, मैदा खाना कम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बढ़ रहे हैं, इसलिए HUL को कंपटीशन उस स्पेस में बढ़ा, एंड HUL कुड नॉट कीप अप विद देयर
इनिशियल रेवेन्यू, तो उस वजह से इन दोनों कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अनदर पॉजिटिव फंडामेंटल चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम लाई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उस वजह से डिक्सन टेक और अंबर एंटरप्राइजेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। ऑल्सो गवर्नमेंट ब्रॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ टैक्स ब्रेक दिए थे, तो उस वजह से टाटा मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज डिड वेरी वेल। अभी ये जो मैंने पी कॉन्ट्रैक्शन का बोला था, वैसे स्टॉक्स में फंडामेंटल चेंज हुआ तो पी एक्सपेंशन भी होता है। ये डिक्सन टेक एक रॉकेट स्टॉक है लास्ट 4-5 साल का। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ईपीएस अराउंड 21 था 2020 में, नवंबर के आसपास, और यहाँ से ईपीएस ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। और अभी वो 5 साल में 10 टाइम्स हो गया है। अभी लेटेस्ट ईपीएस इज 106, 5 टाइम्स हो गया है। और आप पी रेशो देखोगे तो 47 पी था यहाँ पे, वो स्टेडीली बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ईपीएस कम हुआ तो थोड़ा ईपीएस बढ़ा तो थोड़ा पी रेशो कम होता है। इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। लेकिन बाद में पी रेशो भी बढ़ रहा, ईपीएस ज़्यादा बढ़ गया, और पी रेशो अभी उसका पी रेशो है 213। तो वो भी अभी 213 इज़ वेरी हाई पी रेशो। उस लेवल पे ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि 200 पर पी पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इन्हें पी एक्सपेंशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ईपीएस 5 टाइम्स बढ़ गया, स्टॉक वेंट अप फ्रॉम 1600 to 18,000, so it was a almost 12 bagger, 12 times appreciate हुआ सिर्फ less than 5 years, 4 years में। It's a very good example of PE expansion. So ऐसे स्टॉक्स अगर आप अर्ली इन द ट्रेंड कैच करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करता है। ये जैसे अभी निफ्टी के जो स्टॉक्स है, निफ्टी जो है उसमें जो 4-5 हेवी वेट स्टॉक्स है जो निफ्टी को कंट्रोल नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका निफ्टी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ऐसे स्टॉक्स देखेंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी इंटैक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। ये जो 1200 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके बाद ये 2-3 लेवल है, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी गुड सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का भी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी अच्छा है। यहाँ से 2020 से ये अप्रिशिएट हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ 22 में, 22 से लेके अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो वापस रेंज में आ गया। ये जो कंसोलिडेशन फेज है दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थिंग। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में जो मर्जर हुआ उस वजह से उसका थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से थोड़ा ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ है, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। और अभी बैंक, लेकिन अभी शायद वो पिकअप करेगी। अभी ये जो ट्रेंड हुआ, ये नया ट्रेंड चालू हुआ है, उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट अराउंड दिस लेवल है 1500 के आसपास। तो ये होल्ड करके कंटिन्यू करना चाहिए। सिमिलरली इन्फोसिस का भी लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है।
इन्फोसिस का ये 2020 से अच्छा रैली आ गया, फिर ये 1950 के आसपास टॉप आउट होके करेक्शन आ गया, और अभी वापस वो हाई ब्रेक किया, 2006 पे टॉप आउट हुआ और अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है। सो वैसे आप देखोगे तो 22 से लेके अभी तक इन्फोसिस का रिटर्न्स ज़्यादा नहीं है, वो कंसोलिडेशन फेज में ही है, ऐसा बोल सकते हैं। एक बड़ा करेक्शन हुआ, अभी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएगा तो नया रैली आएगा इसमें। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये जो है, इसका थोड़ा सिनारियो वरीसम लग रहा है। अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, ये जो दो लाइन दिख रही है, दीज आर वेरी गुड लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स। अभी ये बहुत क्लोज है, करंट प्राइस 2241 है और ये 2170 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो होल्ड करना चाहिए अगर उसको लॉन्ग टर्म में अच्छा करना है तो। मारुति इंडस्ट्रीज, मारुति का भी कंसोलिडेशन के बाद लॉन्ग टर्म चार्ट, जब तक ये पैरेलल लाइन रेंज में है तब तक मारुति अच्छा करेगा। यहाँ पे एक टॉपिंग कैंडल दिया है, सो थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है इसमें, लेकिन ओवरऑल मारुति का चार्ट अच्छा है। That's all from my side. Thank you.